नमस्कार, मैं अमित सिंह दवायर के लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम दिन भर की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। दिन भर की 3 बड़ी खबरें आज हमने चुनी हुई हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहली खबर है अमरनाथ यात्रा पर कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर जो आतंकी हमला हुआ है। दूसरी खबर है गोपाल कृष्ण गांधी को विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। तीसरी खबर है केंद्र ने एक अधिसूचना जारी की थी पशुओं की खरीद बिक्री को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक जारी रखी है। मद्रास हाई कोर्ट ने एग्जैक्टली रोक लगाई थी, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को जारी रखा है। हमारे साथ दवायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन हैं। सर, कश्मीर की हालात जो बिगड़ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक घटनाएं वहां पे घट रही हैं, और ऐसे में जो एक माहौल हुआ है वो कैसे देख रहे हैं आप उसको, और क्या है एग्जैक्टली? जवाब देने से पहले अमित, मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि वी आर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग विद अ न्यू discussion because of the wire being in English and Hindi. We want to reach the maximum number of people in the most efficient way. So we're going to have this discussion in a bilingual fashion, and hopefully be able to communicate what we think, both Amit and I think, are the important aspects of these 3 news items for the day. And on the Amarnath Yatra issue, the first point to note is that it is perhaps for the first time since the year 2000 that terrorists have chosen to attack the Amarnath Yatra. The Yatra, which is considered by all Kashmiris as a symbol of the composite ethos and culture and spirit of the state. Even at the height of militancy, at the height of violence, today what we have is much lower than say 10 years ago. Terrorists did not attack other than for that one time in the year 2000 when in Pahalgam शायद 30 लोग वहां पे मारे गए थे। तब से लेके आज तक हमला नहीं हुआ है, और हमले के शायद एक हफ्ते पहले गिलानी साहब, जो एक तरह से एज अ हुर्रियत लीडर considered the closest to the militant point of view, so to speak, most hardline separatist politician in the valley, even he reiterated that the Amarnath Yatris are honored guests of Kashmir and they are completely safe. And in fact, the tendency was that to accuse the government of India and accuse the Indian media of exaggerating the threat that the Yatris were subject to. So आज भी सर कश्मीर के सारे हिस्सों से मतलब ये आई है आवाज की, उन्होंने उसकी निंदा की है, और राजनाथ ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया है। हालांकि कुछ लोगों ने उनको इस बात पर ट्रोल किया है कि उन्होंने इसकी निंदा, उन्होंने सीधा कहा कि कश्मीर के लोगों ने को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने इस घटना की, आतंकी घटना की निंदा की है। जी, तो ये प्रक्रिया है कि पूरे के पूरे कश्मीर से आवाज आई है, पूरे देश ने इस पूरे आतंकी घटना की एक तरह से पूरी निंदा की है। नहीं, इसकी मजम्मत जो है कश्मीर में तो हुआ ही है। हुर्रियत, कल रात को हम देख रहे थे कि आई थिंक मीरवाइज उमर फारूक tweeted pretty early that this was a condemnable incident. I saw other politicians, of course, mainstream politicians like Umar Abdullah also strongly criticizing, condemning, and within India, the Indian national political parties, everybody from Congress to BJP to left has strongly condemned. Chief ministers of Bihar, West Bengal have all condemned this. But what's interesting is that within say the camp of people who support or who have favored the government's position on Kashmir, मतलब कि राजनाथ सिंह जी को अगर कोई ट्रोल करे, मैं समझता हूँ कि उनका बयान एक, अगर वो कश्मीरियत के फेवर में बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये हमला कश्मीरियत के खिलाफ था, तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी, ये सही बात थी। और लोगों का ट्रोल करना, people targeting him, and then for the home minister of the country to remind people, I believe he tweeted that please remember that all Kashmiris are not terrorists. ये एक तरह से it's unfortunate that the home minister needs to remind people about this fact, but a lot of the coverage, and I think we need to reflect also that the kind of media coverage we have seen over the last 1 year actually, where on certain channels like Times Now, NewsX, India Today also, even mainstream Kashmiri politicians, mainstream Kashmiri voices who have stood by India, stood by integration with India for the last 5 decades, get accused of being anti-national, get accused of being pro-terrorist, simply because they say that the government of India's approach is wrong. The government of India needs to find some way to have dialogue with those who are separatists. So, Kashmir मुद्दे के लिए अलग-अलग
विचारों के लिए जगह होनी चाहिए। और मुझे डर है कि कहीं ना कहीं मीडिया ने उस जगह को कम की है, इसलिए ऐसी आवाजें आ रही है ट्विटर पे, और राष्ट्र के गृह मंत्री को ऐसा बोलना पड़ रहा है कि मतलब लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है उनको कि भाई इस तरह से आप हिंदुस्तान के किसी भी एक सेक्शन के लोगों के बारे में नहीं बोल सकते। हाँ, वो घाटी में पिछले सर करीब 1 साल से भी बुरहान वानी की मौत के 1 साल पूरे हुए थे। वहाँ पे एक बरखी वरखी कुछ मनाई गई थी और पूरा कार्यक्रम हुआ। सरकार ने इंटरनेट वगैरह बैन कर रखा था पूरे टाइम पे, वो अच्छे से निपट गया उनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से। 1 साल से पूरा एक बवाल चल रहा है वहाँ पे। कम से कम घाटी में 6 महीने कर्फ्यू लगा रहा। वहाँ पे बच्चे हैं, उनके मानवाधिकार होते हैं, इन सब की चिंता मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया भी नहीं, और वो जो संदेश लोगों के पास पहुंचा वो बहुत बुरा रहा। इस कारण उनको लगता है कि कश्मीर में सारे लोग वो मतलब सिर्फ लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं, या ऐसा कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, आतंकी हमले कर रहे हैं। ये जो इसमें जो मीडिया की भूमिका रही वो जरूर सवाल उठाने लायक है, क्योंकि अगर हम ये नहीं बताएंगे कि कश्मीर में लोग रहते हैं, वहाँ पे आम हमारे आपकी तरह लोग रहते हैं, उनको भी खाना खाना है, उनको भी स्कूल जाना है, उनको भी पढ़ाई करनी है, बच्चे हैं, उनको क्रिकेट खेलना है। अभी कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि वहाँ पे किसी भी जिले में कोई खेल की क्रिकेट अकादमी नहीं है, मतलब कोई भी खेल की कोई भी अकादमी नहीं है जहाँ पे बच्चे जाके खेल सकें और सब कुछ कर सकें। फिलहाल अभी स्पोर्ट्स मंत्री ने कहा कि अब हर जिले में एक मतलब खेल अकादमी खोलेंगे, लेकिन इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि वहां पे भी वही लोग रह रहे हैं। मतलब जो बेसिक डिफरेंस ये है कि आप दिल्ली में पैदा हो गए हैं या आप कश्मीर में पैदा हो गए हैं, पैदा होने पे तो उनका अपना कोई अधिकार नहीं है। तो वो अगर वहां पे पैदा हो गए तो उनके सामने जो तकलीफें आ रही हैं उसको हमें समझना पड़ेगा, और उनके मानवाधिकार की, उनके सारी जरूरतों की, उनकी मूलभूत सुविधाओं की हमें चिंता करनी पड़ेगी। I think also one important facet of what happened last night, I've been looking at the response in the valley last night and today. Local people, local ordinary Kashmiris universally have condemned this. People have come forward to help yatris. वहाँ पे इस किस्म की चर्चा नहीं हो रही है कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में मुसलमानों का कत्ल हुआ है तो हम इसके बारे में परवाह क्यों करें। वहाँ पे ये सवाल नहीं उठा जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं व्हाट अबाउट, कि भाई अगर आप किसी एक इंसिडेंट की मजम्मत करते हैं तो कोई फौरन खड़ा हो जाता है कि भाई ये ठीक है लेकिन उसके बारे में क्यों चुप हो। तो ये दिस toxic, pernicious equivalence that we have seen in India for the last few years, that if you criticize something bad that is done, others don't join you, they say नहीं आप ये क्यों बोल रहे हैं, आपको वहां पे कुछ बोलना चाहिए था। अभी तक हो सकता है कि कश्मीर का एक छोटा तबका ये जुबान में ऐसे बोल रहा है, लेकिन इनफैक्ट आई नोटिस yesterday that Omar Abdullah on Twitter used very sharp language against some people on his timeline who were trying to minimize the incident in the early शुरुआती जो खबरें थी वो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं था कि क्या आतंकियों का एक मुठभेड़ पुलिस के साथ पहले हुआ, उसके बाद भागते वक्त वो बस के आगे आके वहां पे फायरिंग की। इन अदर वर्ड्स क्या बस पे हमला एक मौका परस्त किस्म का एक अपॉर्चुनिस्ट टाइप का अटैक था या एक प्लान टारगेटेड अटैक था। तो उमर अब्दुल्ला वाज क्रिटिसाइजिंग सम पीपल ऑन हिज टाइमलाइन हु वाज सेइंग कि नहीं ये तो क्रॉस फायर में ही, in other words trying to minimize. And I think it's important that we also understand that the ordinary Kashmiri is not trying to minimize. If anybody is doing it, it's just a few people. The Kashmiri politician, the ordinary Kashmiri recognizes and accepts that what has happened is a horrendous thing. It is a crime against the people who were killed. It's a crime against the spirit of what Kashmir stands for, and they have condemned it, and there is no equivocation. मतलब इसमें ये जो डाउट रहता है हमेशा कि भाई नहीं किसने किसी और ने किया होगा, मतलब उस किस्म की चर्चा नहीं हो रही, जो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। अच्छा, उसमें एक चीज और भी सर मैं जोड़ना चाहूंगा। जिस बस पे हमला हुआ था उसके जो ड्राइवर थे वो मुसलमान ही थे, और उन्होंने बहुत मतलब हिम्मत का काम करके करीब 50 लोगों की जान बचाई है, और उनका बयान भी आ चुका है। और दूसरा कुछ दिनों पहले जो हरियाणा में घटना हुई थी उसके खिलाफ नॉट इन माई नेम करके एक कैंपेन चलाया गया था। उन लोगों ने आज अमरनाथ यात्रियों के लिए भी प्रदर्शन रखा है दिल्ली के जंतर मंतर पे। ये दोनों बातें बहुत अच्छी हैं। उस टाइम पे भी सारे लोगों ने कहा कि एक मुसलमान के मरने पे ये सारे लोग प्रदर्शन करने चले आते हैं, हिंदुओं के मरने पे चुप रहते हैं। तो शायद I think you're right. This is the best example of putting an end to this kind of silly debate. The death of any innocent person through violence, whether by a mob or by terrorists or any other means, is condemnable.
पीपल शुड यूनाइट टू डिमांड जस्टिस, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इट्स परहैप्स टेक्स अ ट्रेजेडी लाइक दिस टू रिमाइंड अस ऑफ द बेसिक ह्यूमैनिटी। एक और इशू मैं हल्का सा रेज करना चाहूंगा कि वी नीड, यू नो, देयर सम एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इंसिडेंट, फॉर एग्जांपल जिस तरह से सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल होता है उसको ब्रीच किया गया, तो आई थिंक एक इस पे भी जांच होनी चाहिए, बिकॉज द यात्रा एक्चुअली हैज बीन अ वेरी सेफ एंड सिक्योर यू नो ऑपरेशन. The government of India, the army puts in a lot of effort to make sure that the yatris are safe. So if there are loopholes that allow individual buses to deviate and which then expose them to being a target, I think this element also needs to be probed and investigated. I wouldn't go so far as to say it's a security lapse जिस तरह से कुछ विपक्षी दल कह रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली सरकार को बातें उठाई जा रही हैं कि इस बस का अमरनाथ यात्रा के तहत पंजीकरण नहीं किया गया था और वो शाम को 7 बजे के बाद कोई बसें चलने की इजाजत नहीं होती है, उसके बगैर ये चली थी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और इस पे भी जांच होनी चाहिए, सो दैट नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स, मतलब इशू ये नहीं कि भाई बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, एनसी ने किया, पीडीपी ने किया, लेकिन ऐसी घटना दोबारा ना घटे। I think it's important to understand how the mechanics of this happened actually. अच्छा, इसके साथ अगली खबर पे हम चर्चा करते हैं। विपक्ष के 18 दलों ने मिलकर गोपाल कृष्ण गांधी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया है। गोपाल कृष्ण गांधी के नाम की चर्चा राष्ट्रपति चुनाव के समय भी हुई थी और खूब जोर शोर से हुई थी। हमारे यहाँ पे ही एक इंटरव्यू आया है केसी त्यागी जी का, तो उनमें उन्होंने कहा है कि सीताराम येचुरी ने सबसे पहले नाम दिया था और उसके बाद जदयू ने इस पर सहमति जताई थी राष्ट्रपति पद के लिए, और फिर अभी लेकिन कांग्रेस उस टाइम पे चुप हो गई थी। लेकिन आज सारे दलों ने एक आम सहमति दी है इस पे, और 18 दल थे, उसमें जदयू के शरद यादव जी भी थे। तो एक तरह से फिर से विपक्ष यूनाइट होने की कोशिश कर रहा है, और इस बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम उन्होंने घोषित करने में देरी की थी। पहले बीजेपी ने घोषित कर दिया था, एनडीए ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था। इस बार वो एनडीए को पीछे छोड़ने के मूड में है और एक विपक्षी एकता को पूरे तरीके से कारगर करना चाह रहे हैं। नहीं, it's a very good move from the point of view of parties trying to act in a united way, especially after questions were raised about how united the opposition is. So full marks to them for that, at least. But I think that they have, and it's a very good, it's a credible name, Gopal Krishna Gandhi. Apart from writing for The Wire regularly, is a very well-respected personality, governor of West Bengal, former governor of West Bengal, former ambassador to South Africa. He's an author, he's a translator, he's done a wonderful translation of the Tirukkural recently. And I think is a name that people will be very comfortable with. The only unfortunate thing is that गणित जो है, मतलब कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो गणित है, वो किसी भी तरह विपक्ष को फेवर नहीं करता है। मतलब बल्कि ये तय है शुरू से ही कि सरकार का जो नुमाइंदा या जो कैंडिडेट होगा, बिकॉज मैं दर्शकों को दोबारा इस बात को दोहरा दूं कि द इलेक्टोरल कॉलेज, द प्रोसेस फॉर वोटिंग फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज थ्रू अ सिंपल मेजॉरिटी vote of all members of parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha combined. So even though the NDA does not have a majority in the Rajya Sabha, but when you combine them, एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, आराम से जीत जाएंगे। वैसे तो इतिहास देखा जाए तो राष्ट्रपति चुनाव में भी सरकारी कैंडिडेट कभी भी आज तक हारा नहीं है। तो गोपाल कृष्ण गांधी जी अगर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते भी तो शायद हार ही जाते। लेकिन इन टर्म्स ऑफ the tactics, in terms of the signaling, it would have been much better if, as K.C. Tyagi explained in that interview, and Prem Shankar Jha also wrote a column for us, the opposition had agreed, and he pointed his finger to an important issue, which is that somewhere down the line, the Congress party, which has only 44 MPs, fine, it's the largest party in the opposition, so they have the right to be the main or the party around which everybody unites. But it cannot behave as if it has 200 MPs. So, if for the presidential election it had decided कि नहीं, we will go, I think that they had made up their mind that they wanted a Congress candidate, and they wanted everybody to endorse the Congress candidate. I think Tyagi ji was essentially revealing this that emerged from the whole conversation, and I think for that reason the Congress lost out. इसमें अब कांग्रेस ने समझदारी तो दिखाई है, लेकिन थोड़ा देर हुआ है। लेकिन अभी तक आपको क्या लगता है अमित कि बीजेपी की ओर से एक नाम तो चला था, बल्कि हमारे यहाँ संगीता बरुआ ने एक स्टोरी चलाया था
of the BJP looking at the candidature of S.C. Jameer, former Chief Minister of Nagaland, congressman actually, as a potential candidate in order to cement its appeal in the northeast. But I wonder what the other names are doing the rounds, or whether Mr. Modi and Amit Shah will get somebody completely unexpected. मुझे जो लग रहा है, जिस तरह से मोदी और शाह की जोड़ी ने चुनाव किया है, जो इनके पिछले पुराने कुछ चुनाव रहे हैं, उसके हिसाब से ऐसा कोई उम्मीदवार आएगा जिसके नाम की चर्चा कहीं नहीं रहती है, भले वो बेहतर रहे। मतलब मोदी और शाह की जोड़ियों के जो चुनाव हो रहे हैं, इससे मैं बहुत सहमत नहीं रहता हूं कि वो बहुत अच्छा चुनाव कर रहे हैं। इन्होंने जितने मुख्यमंत्रियों के चुनाव किए हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो गए, मनोहर लाल खट्टर हो गए, रघुबर दास हो गए, या अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड में, ये सारे, या योगी आदित्यनाथ, जो भी चुनाव रहे हैं वो बहुत अनएक्सपेक्टेड से रहे और एक रहस्यमय तरीके से, मतलब कि लॉजिक समझ नहीं आता एक्चुअली एक तरह से। आपकी सरकार है, आप यूपी में आपके पास बहुमत था, उसके बाद भी आप 15 दिन तक एक रहस्य बनाए रखे कि कौन चुना जाएगा, कैसा होगा, और फिर लास्ट टाइम पे आके ब्लॉम कि ये आ गया। लेकिन आमतौर पर इन चीजों पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। मतलब इवन if you recall when Hamid Ansari ji was first elected as vice president, or when Pranab Mukherjee's name came, और उससे पहले चलिए प्रतिभा पाटिल के साथ तो एक सलाह मशवरा का एक सिस्टम था, बल्कि उनका नाम एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कहा जाता है कि एबी बर्धन, कॉमरेड एबी बर्धन सीपीआई के नाम उन्हीं ने एक तरह से एंडोर्स किया, क्योंकि उसकी पुरानी वाकफियत थी। जब प्रतिभा ताई जो है वो जलगांव की एमएलए थी, एंड एबी बर्धन वाज इन्वॉल्वड इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, बट अदरवाइज governments have tended to be quite secretive. But I think your wider point is correct, that not only the presidential or vice presidential candidate, but all the selections, apart from Sarbananda Sonowal, who was an obvious leader of BJP in Assam as chief minister, because he was the man who was the face of the campaign. But otherwise, they have the logic or the process is a mystery, and in a way, one perhaps expected differently from BJP, because BJP has always been critical of the Congress party's dynasticism, high command culture. लेकिन यहाँ पे भी वही एक तरह से टॉप डाउन कुछ चुनिंदे लोग तय करते हैं और फिर सबको इसी चीज। अच्छा, गोपाल कृष्ण गांधी पे एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये भले ही हार जाएंगे, लेकिन जिस तरह से इनके पीछे विपक्ष एकत्रित हुआ है, आज जिस तरह से चर्चा हुई कि आगे क्या प्लान बनाना है, जो सत्र आ रहा है संसद का, तो अगर विपक्ष ऐसे ही मतलब यूनाइट रहा तो शायद बीजेपी सरकार के लिए आने वाले समय में थोड़ी मुश्किल होगी। और ये अच्छी बात है कि अपने हार के साथ वो विपक्ष को यूनाइट करके चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी खबर है। In fact, I will take that point further and say that I think the media has been a little bit guilty of over analyzing the logic of Nitish Kumar in deciding not to support Meera Kumar and supporting Kovind ji. After you listen to KC Tyagi, and one has also spoken to some other JDU leaders, they are quite clear in their mind that all the overtures BJP is making, शायद आज या कल भी इस बात को दोबारा दोहराया गया कि तेजस्वी यादव के इशू को लेके आप आरजेडी के साथ नाता तोड़िए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो बीजेपी जो है मुसलसल कोशिश कर रहा है कि आप उसको छोड़ दें, हमारे पास आ जाएं, एंड दे हैव मैनेज्ड टू क्रिएट सम डाउट इन पीपल्स माइंड्स दैट हाउ firmly wedded to the opposition and how firmly wedded to Mahagathbandhan is Nitish Kumar going to be. I think so far he has played his hand quite carefully, and I think his coming back into the opposition camp explicitly to select a vice presidential candidate, as you are saying, is true. Gopal Krishna Gandhi ji will not win, but maybe this will lead to more better coordination by the opposition parties. I should also tell readers and viewers that in some ways the vice president is more important than the president, for the simple reason that the vice president controls the Rajya Sabha, and particularly in a situation where the Rajya Sabha NDA does not have a majority. So I would say of the two elections, by far the more important one strategically, of course, would be president, because आप एक अपने आदमी को president बना रहे हैं, he is the commander in chief, etc. But in terms of tactics of day-to-day politics, the vice president, because he is the chairman, he or she is the chairman of Rajya Sabha, is very, very important. And so I think that for that reason, this was an important election. I'm glad that there's some kind of a fight, even though the outcome is quite clear. तीसरी हमारी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक
केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले एक अधिसूचना जारी की थी पशुओं की खरीद बिक्री को लेकर, जिसपे मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को जारी रखा है। तो ये इस अधिसूचना का सबसे ज्यादा विरोध किया गया, देश के अलग अलग राज्यों ने और बहुत सारी जगहों में प्रदर्शन किया गया। सरकार ने कुछ ऐसे रूल बनाए थे जो आम जीवन में मतलब आपके व्यापार करने में बहुत तकलीफ देने वाले थे। मतलब लोग पशुओं के को पालने से डरने लगेंगे, इस तरह का मतलब है कि अगर आप कहीं जाते हैं, किसी के खरीदते हैं कोई किसी का पशु, तो आपको पूरा एक प्रमाण पत्र लिखित रूप से देना पड़ेगा, उसमें फोटो लगानी पड़ेगी, किसने खरीदा, किसने बेचा, किसने क्या किया। और फिर आप बच्चों को नहीं बेच सकते, बच्चों इन द सेंस की मतलब जो मवेशी बच्चे होंगे उनको नहीं बेच सकते आप, गायों के बच्चों को, भैंसों के बच्चों को। तो एक तरह से ये बहुत अजीब तरह का की अधिसूचना थी जिसपे कोर्ट ने रोक जारी रखी है। Yeah. Now, I think it was important that the court took this decision because there is total chaos and confusion in cattle markets in this country. I cannot think of a more poorly drafted rule that the government came up with. They claim that this was because of litigation in the Supreme Court, but if you look at what the Supreme Court said in the petition about animal cruelty, this had to do with the export of मवेशी का जो है नेपाल की ओर, वहाँ पे जो मेनका गांधी और मेनका गांधी से जुड़े हुए जो एक संस्था है उसने उस पे केस डाला. सो that is the case out of which this rule and regulation has emerged, but it is such a draconian rule that it has effectively put an end to the sale of bulls, cows, buffaloes, camels across the country in cattle markets unless the owners are able to supply all kinds of paper. But लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस रूल को बगल में छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए. अनफॉर्चुनेटली गो रक्षा के नाम पे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, इन्होंने एक ऐसा कहर का माहौल खड़ा कर दिया है कि आम मतलब आप कहीं से कहीं आप कतराओगे, आप डरोगे कि क्या मैं अपने ट्रक में अपने ही मवेशी को किसी अपने पर्पस के लिए, लीगल पर्पस के लिए कहीं ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं. मतलब हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि people are thinking twice, 3 times about whether to transport any kind of cattle. They are worried about what happens when you get accused by a mob. The police does not intervene. So this mob culture, this lynchings that we've seen, even if the total number of casualties is in maybe single digits or double digits, but I think it has had an effect on ordinary farmers. It has, if you look at, we ran a piece last week कि नोटबंदी का जो असर पड़ा था ग्रामीण क्षेत्र के अर्थव्यवस्था पे, उसके साथ अगर आप कैटल ट्रेडिंग के रिस्ट्रिक्शंस को जोड़ दीजिए, दिस इज लाइक अ ह्यूज अटैक ऑन रूरल लाइवलीहुड्स दैट वी हैव सीन. वो गायों को लेके या मतलब जानवरों को लेके, ये जो पालतू जानवर है हमारे, गाय भैंस और बकरी और इस तरह की सारी चीज़ों को लेके जो माहौल बना है, अभी कुछ दिनों पहले वो राजस्थान की घटना हुई थी कि तमिलनाडु, वहाँ से सरकारी उसमें योजना के तहत पशु जा रहे थे, उनको उठा के पीट दिया गया. तो इसके साथ जैसे सरकार का सारा ध्यान ही इस पर आ गया है कि वो क्या क्या करेंगे, क्या नहीं होगा, और कहीं भी एक जगह रोक लगने वाली बात नहीं हो पा रही है. ऊना में एक घटना हुई थी आज के 1 साल पहले, उसके बाद से हम एक सीरीज देख रहे हैं, उसके 1 साल करीब पूरे होने वाले हैं, शायद 13-14 जुलाई को वही घटना हुई थी वो ऐसे ही. उसके बाद से एक सीरीज में ये घटनाएं पूरे देश में, गुजरात से राजस्थान, कश्मीर, यूपी, बिहार, झारखंड, ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. एक जगह जब आप इसको रोकेंगे तो शायद अगली जगह ये इस पे मतलब रोक लगे, लेकिन सरकार उनके पक्ष में कानून बनाती जा रही है कि नहीं ऐसा भी हो सकता है. आपको एक और मतलब जो ये फ्रिंज एलिमेंट है, मतलब जिनको कोई नहीं मतलब जिम्मेदारी दी गई है, सरकार वो रोक लगाएगी, सरकार कानून लाएगी, लेकिन जो इनको एक समर्थन मिल जा रहा है वो भी नैतिक समर्थन मिल जा रहा है. जब आप कोई भी घटना होने के बाद जब किसी को सजा नहीं मिल रही है तो लोगों का और मन बढ़ जा रहा है कि उनको लग रहा है कि आगे नहीं, ये फ्रिंज एलिमेंट का जो एक तरह से बीजेपी के लोग कहते कि नहीं इनको ज्यादा अहमियत मत दो. मुझे लगता है कि जिस दिन वो फोटो हम सबने देखा कि दादरी हत्याकांड को लेके जो आरोपी जेल में मरा था मलेरिया डेंगू की वजह से, उसके फ्यूनरल पे, उसके शव पे जो है भारतीय झंडा जो है लगाया, वहां पे मंत्री सलूट दे रहे हैं, तब से पता चला कि ये लोग फ्रिंज नहीं है, दरअसल में ये मेन स्ट्रीम लोग ही हैं और पूरी तरह से इनको पनाह मिल रहा है, इनको इंकरेजमेंट मिल रहा है. भले ही प्रधानमंत्री या और लोग फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसे बयान करें कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शब्दों के प्रयोग से कोई फर्क नहीं पड़ता. जब तक आप कानूनी कार्रवाई नहीं लेते, जब तक आप एक
ऐसा संदेश नहीं भेजते। अब ऊना में देखिए, ऊना का कांड 1 साल हो गया है। हमने अभी हाल में दमयंती धर का लेख छापा है वहां से कि जो ऊना के जो विक्टिम्स हैं, they are still struggling to get on with their lives, to get compensation, to have justice done to them. The people who attacked them are out on bail. There was another recent incident where a Dalit died, a tribal man died in custody, police custody, after he was accused along with a Dalit and a Muslim of killing a buffalo, killing a bull in another village. उस bull का न तो शव मिला है, कोई नामो निशान नहीं है, कोई ये कह नहीं पा रहा है कि भाई वो क्या वाकई में वो भैंसा जो है वो कटा कि नहीं कटा। लेकिन जांच उस इंसिडेंट पे है कि भाई बफलो बुल को किल किया गया कि नहीं किया गया, बट ऑन द कस्टोडियल डेथ ऑफ द आदिवासी मैन देयर इज नो इंक्वायरी, देयर इज नो ग्रेट, पीपल आर नॉट राइटिंग अबाउट इट, मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो you know this very warped kind of politics in which जैसे आपने कहा कि सारा तवज्जो जो है आपका काउ पॉलिटिक्स पे है और पशुओं से जुड़े हुए, और उसके बावजूद भी जैसे उड़ीसा में हुआ कि अमित शाह के मोटरकेड ने एक गाय को वहां पे टक्कर, मतलब हुआ एक गाय के साथ, द काउ वाज अबैंडन्ड। वी हैव अ स्टोरी विद अस अबाउट हाउ डिस्पाइट प्रॉमिसिंग दैट वी आर गोइंग टू पे, मतलब जिस किसान की वो गाय थी उसने अपने जेब से कम 5-6 हज़ार रुपए का खर्च किया अपने गाय के इलाज के लिए। बीजेपी के किसी भी लीडर ने उसको जाके मदद नहीं की। तो ये कहाँ रहा आपकी हमदर्दी? या ये अभी भी खबर आती है, अभी 2 दिन पहले हरियाणा के गौशाला में 20-25 गायों के मरने की खबर आई। उसके पहले 4 दिन पहले भी हमने गुजरात की खबर लगाई है, गुजरात में एक गौशाला में 65 गायें मर गई हैं। अब गायों के साथ आप क्या कर रहे हैं ये आपको मतलब समझना पड़ेगा कि गाय आपके जीवन में एक अंग है, मतलब आपके खेती के, आपके गांव ग्रामीण जीवन में एक अंग हो सकती है, आपको दूध दे सकती है, आपके लिए बछड़े आ जाएंगे, बैल आएंगे, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी नहीं हो सकती कि आप पूरा ध्यान आप सिर्फ राजनीति के लिए गाय के पीछे लगा दीजिए। Exactly. No, I think that this order by the Supreme Court to put a stay on this, सरकार ने भी एक तरह से कबूल किया कि नहीं, बहुत आलोचना आई है, बहुत criticism हुआ है, we are going to rethink it. I think it's best if the government does rethink this absurd rule under the Prevention of Cruelty to Animals. It's essentially a ban, a nationwide ban on the slaughter of cows, bulls, buffaloes and camels through the back door. It is, to my mind, anti-constitutional because the Constitution clearly says that restrictions on the slaughter of animal is a state subject. लेकिन cruelty के नाम पे आपने अगर killing a buffalo is cruelty, if you're killing a buffalo for meat, उस लॉजिक को आप फिर बकरियों और मुर्गियों के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो मुझे लगता है कि सरकार को दोबारा इस पे डेफिनेटली सोचना चाहिए, और अगर सरकार कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को मान ली है, so this is a good thing. I just hope that common sense progresses, but that essentially brings us to the end of our discussion. Amit and I have essentially been talking about what we regard as the 3 important stories of the day. There are lots of other events, developments that have happened over the last 24 hours. The State Human Rights Commission in Jammu and Kashmir announced 10 lakh rupees compensation for Farooq Dar, the man who was used as a human shield by the army. We haven't had a chance to discuss that in some detail, but perhaps tomorrow, if there is further development in that story, depending on how the state government reacts, we will come back to that as well as other burning issues of the day. Thank you very much for watching us. Exactly. To both our viewers of The Wire and The Wire Hindi, it's great that you joined us. Thank you.